I started my clinic way back in 2008. The acid word is very terrifying. एक्ने की बात हो ही गई है डॉक्टर साहब. What causes acne? In common language, youngsters are using it as hydrating shots. ये आपकी एजिंग बहुत फास्ट होगी अगर आप स्ट्रेस रहोगे हमेशा. ये जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है वो कोई हाइड्रोक्विनोन होता है, उससे बहुत सेफर है. पिगमेंटेशन का मतलब क्या होता है एक्चुअल? बिल्कुल, अब बहुत अच्छा सवाल है ये. बहुत सारे फॉर्मुलेशन जैसे आपने बताया, हमने चर्चा करी कोजिक एसिड, अल्फा आर्बिटिन, नियासिनामाइड, ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉल सीरम, हाइलोनिक एसिड, बहुत सारे तरह के कॉम्बिनेशन है. सनस्क्रीन एज एन एंटी एजिंग प्रोडक्ट. यस, एज एन एंटी एजिंग प्रोडक्ट भी काम करता है. तो जो सेलिब्रिटी स्किन आती है और जो आजकल ग्लास स्किन की बातें करते हैं, देखो वैसे तो ये गॉड गिफ्टेड ही होती है. Welcome to the Clay of Heaven podcast. I'm Amit, and today we'll dive into a topic which is often misunderstood. That is skincare acids. I know the word acid might sound a little intimidating, but trust me, ये skincare acid आपके best friends बनेंगे skin के when used correctly. Whether it is acne, hydration, anti-aging, there is an acid for every skin concern. Joining us today, a renowned and vastly experienced dermatologist, Dr. Sanjay Mittal. Dr. Mittal has having a vast experience of 19 years in treating skin conditions like acne, pigmentation, anti-aging. He has been a co-investigator in an international trial too. So, welcome Dr. Mittal to Clay of Heaven podcast. Thank you, sir. So, can you tell us something about yourself? Yes, sir. Myself, Dr. Sanjay Mittal, and I am a dermatologist, MD dermatologist, and I am running my own clinic, which is named as Mittal Skin, Hair, Laser and Cosmetic Clinic. And I started my clinic way back in 2008. I started from 200 square feet rented space. Gradually, I shifted in 600 square foot space after 5 years. And right now, I am running my clinic in 7,000 square feet space. मेरे पास में क्लिनिक पे सब तरह की मशीन है. लेजर मशीन for pigmentation, for unwanted hair removal, or for open pores, for scars, or we do hair transplant also at our clinic. सभी प्रकार के कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी भी हमारे क्लिनिक सेटअप में ओटी के साथ में अवेलेबल है. हमारे स्किन, हेयर और कॉस्मेटिक और नेल, पिगमेंटेशन सारी कंसर्न अंडर वन रूफ वी ट्राई टू एड्रेस द इश्यूज. So there is one-stop solution for all type of cosmetic and dermatology problem. आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉपुलर एसिड्स की जो करीब करीब हम सभी स्किन प्रोडक्ट्स में देखते हैं, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड, नियासिनामाइड, हाई एल्यूरोनिक एसिड. बट these acids are your best friends when used correctly. What is the right proportion and does quality matters? So let's talk about salicylic acid first. डॉक्टर मित्तल. यस सर. हम बहुत सारे प्रोडक्ट, एक्ने रिलेटेड प्रोडक्ट्स में सैलिसिलिक एसिड के बारे में देखते हैं जी. तो फर्स्ट, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज सैलिसिलिक एसिड, एंड सेकंड, व्हाट इज द राइट परसेंटेज ऑफ सैलिसिलिक एसिड इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स? Yes, as you rightly said that it is very terrifying that the acid word is very terrifying. Patient think that it will cause chemical burn, but trust me, all type of acids are not going to cause chemical burn. Salicylic acid is very frequently used in our practice. यह एक्ने में काम आता है. It is used as anti-acne treatment and it exfoliates the skin. It is used in oily skin and dry or acne prone skin. So it is very good for the skin and it is used in the serum formulation and in gel formulation also. So trust me, many type of acids like hyaluronic acid, glycolic acid, salicylic acid and ascorbic acids are used in skin, and nowadays they are trending like anything. Dr. Mittal, do you think the lifestyle changes these days are increasing skin conditions and skin problems? Yes, because lifestyle has been totally unbalanced. Biological circadian rhythm is not perfectly going, so patients are having many types of skin diseases like acne, pigmentation, under eye dark circle, periocular puffiness because of their lifestyle. In lifestyle, they are indulged in so much screen time which affects their skin and which is causing pigmentation. So lifestyle plays very important role in our skin conditions.
Great, sir. And what is the right percentage to use salicylic acid in skincare products? In skincare products, ideally it should be used in 2 to 5% combination, not more than that. But while using therapeutically, we can go from 10 to 30% also. But as a cleanser or as a face wash or as a serum, we can use it in 2 to 5% concentration. Okay. And तो क्या हम ये कह सकते हैं कि science allow us to use, yeah, science has proved that salicylic acid is the most effective and widely used Yes. treatment for acne? Yes, widely used. I can say it is widely used as a serum formulation, but it is not the only drug to be used in acne. There are lot many drugs which can be used in acne, but yes, because it is nowadays it is trending, it is most commonly used in acne. अब एक्ने की बात हो ही गई है डॉक्टर साहब, व्हाट कॉजेज एक्ने? एक्ने इज हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है. अगर आपने जैसे लास्ट टाइम बताया, अभी लाइफस्टाइल की वजह से एक्ने एग्जैसरबेट हो सकते हैं. डाइटरी हैबिट्स ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एक्ने, और यंग एज में खान पान की वजह से भी एक्ने हो सकते हैं. अगर फेस वॉश अच्छे से नहीं करें, ऑयली प्रॉन स्किन है, एक्ने प्रॉन स्किन है, उसे हम फेस वॉश अच्छे से नहीं करें, जिसमें भी सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश हम यूज कर सकते हैं, उसकी वजह से एक्ने होते हैं. तो एक्ने को ट्रीट करने के लिए भी सैलिसिलिक एसिड यूज किया जा सकता है. That's great, sir. तो कमिंग टू द नेक्स्ट, जैसे हम कहते हैं अल्टीमेट हाइड्रेशन बूस्टर, यस, जो है हाई एलुरोनिक एसिड. बहुत नाम सुना है आजकल. इस प्रोडक्ट में भी हाई एलुरोनिक एसिड है, इस प्रोडक्ट में भी है. तो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस एसिड? Hyaluronic acid is a type of humectant, means which absorb water from the skin as well as from environment. So it is a type of hydrating serum, hydrating shots. In common language, youngsters are using it as hydrating shots. It is applied in morning and evening at even as an evenly thin film over the skin. ये स्किन को ड्राई होने से बचाता है, स्किन का हाइड्रेशन जो मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से स्किन जो इरिटेट होती है, स्किन लस्टरलेस होती है, वो होने से सीरम लगाने से बच जाती है. तो ये बहुत यूजफुल सीरम है, और अभी यंगस्टर्स काफी कंसर्न्ड हैं अपनी स्किन को लेकर, अपने लुक्स को लेकर, तो ये काफी ज्यादा यूज में ली जाने लगी है. डॉक्टर साहब, लुक्स को लेकर तो पहले हमारी दादी नानी भी बहुत कंसर्न रहती थी, लेकिन क्या वो ये एसिड ही यूज करती थी? नहीं सर, उस समय जैसे जो कॉमन होम रेमेडीज होती थी, हल्दी का लेप होता था, जो क्या नाम, तो हम घर पे यूज करते थे. फल फ्रूट का जूस, चुकंदर का जूस, गाजर का जूस और खीरे का, उस तरह का जूस यूज कर सकते थे. और जो क्ले होती है, क्ले जो हम बोलते हैं, उसका भी लेप लगाने से जो ऑयली प्रोन स्किन है, मुल्तानी मिट्टी जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, उससे भी एक्ने प्रोन स्किन और ऑयली स्किन काफी हद तक करेक्ट होती थी. तो दादी नानी के जो नुस्खे हैं वो भी आज भी कारगर है, और क्लाइंट्स अपने घर पे भी इनको लेप के रूप में, फेस मास्क के रूप में यूज कर सकते हैं. तो ये इफेक्टिव है आज भी. ओके. और क्या ये स्ट्रेस जो है या एंजाइटी जो है, क्या ये भी स्किन कंडीशन के लिए बैड है? स्ट्रेस और एंजाइटी तो पूरे शरीर के लिए, किसी भी ऐसा बॉडी का कोई पार्ट नहीं है जिसके लिए डेंजरस नहीं हो. स्ट्रेस मल्टीपल प्रेजेंटेशन देता है. जैसे स्किन के में टायर्ड लुक आएगा, आप सैगिंग ऑफ द स्किन होगी, आपकी एजिंग बहुत फास्ट होगी अगर आप स्ट्रेस रहोगे हमेशा. आपके आंखों के चारों तरफ बैग्स बन जाएंगी जो कि आपकी टायर्ड लुक को रिफ्लेक्ट करेंगी. और कुछ कुछ पेशेंट में स्ट्रेस एसिडिटी के रूप में ही रिफ्लेक्ट करता है. जैसे पेशेंट को बर्न होते हैं, एसिड बर्न होते हैं, रिफ्लक्स ज्यादा होता है. कुछ पेशेंट्स में ये लेग पेन्स के रूप में हो सकते हैं, कुछ पेशेंट को माइग्रेन के रूप में हो सकता है. तो स्ट्रेस ऐसी चीज है जो शरीर के हर हिस्से को किसी न किसी रूप में अफेक्ट करता ही करता है. लेकिन हाई एल्यूरोनिक एसिड जो है, वो जैसे पहले आपने कहा कि अल्टीमेट हाइड्रेशन बूस्टर है जी, तो वो हमारी स्किन को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट करता है और स्किन को प्लफी और ग्लोइंग बनाता है. बिल्कुल. स्किन को सप्पलनेस मेंटेन करने के लिए और अनइवन स्किन टोन में इवन स्किन टोन को में कन्वर्ट करने के लिए, और आपकी फ्लॉलेस स्किन कैसे मेंटेन रहे, उसमें हाइलुरोनिक एसिड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ओके ओके, दैट्स ग्रेट सर. अब हम आते हैं मूविंग टू विटामिन सी. जी. तो इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो दैट्स अ वेरी स्टेबल. तो हाउ एन इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड डिफर्स फ्रॉम
pure vitamin C? Ascorbic acid is in pure form and stable form. Generally, ascorbic acid can be oxidized when the bottle is getting open. But ethyl ascorbic acid is very stable form. It is used in 10 to 20% concentration, and ये है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के रूप में काम करता है. स्किन में जो ओपन पोर्स होते हैं, अनइवननेस होती है, उसको मेंटेन करने के लिए, एज्ड जो स्किन होती है, सन डैमेज स्किन होती है, वहां भी रूटीन में विटामिन सी सीरम नाइट रिपेयर सीरम के रूप में हम काम में ले सकते हैं. और ये स्किन के प्रिवेंटिव मेजर्स में काम आती है. हमें क्योर करना हो या ट्रीट करना हो, वहां विटामिन सी का इतना रोल नहीं रहता है. बट स्किन को अगर मेंटेन करना है, स्किन हेल्थ अच्छी रखनी है, तो वी कैन यूज डेफिनेटली दिस विटामिन सी सीरम विच इज इन स्टेबल फॉर्म. ओके, अभी आपने कहा रात को ही यूज करना है, तो कैन दिस सीरम कैन बी यूज्ड इन डे टाइम आल्सो? यस, डेफिनेटली इट कैन बी यूज्ड. जैसे हाइलोनिक एसिड कैन बी यूज्ड इन द मॉर्निंग टाइम आल्सो. विटामिन सी कैन आल्सो बी यूज्ड इन द मॉर्निंग टाइम. बट समटाइम्स स्किन केयर रूटीन रेजिम में कुछ सीरम पेशेंट नाइट रिपेयर सीरम के रूप में यूज करते हैं. जैसे रेटिनॉल सीरम भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग है. एंटी एजिंग सीरम है, वो आपकी जो रिंकल्स है, फाइन लाइंस है, उसको कम करने में काफी हेल्प करता है. इसलिए हम डे टाइम में अगर सारे सीरम यूज करेंगे, तो नाइट टाइम में कुछ सीरम हम यूज करें, तो स्किन ओवरनाइट आपकी रिपेयर होती है. ओके सर, अब आपने जब एंटी एजिंग वर्ड लिया है, तो मुझे एक और एसिड ध्यान आ रहा है, ग्लाइकोलिक एसिड. बिल्कुल बिल्कुल, इसका भी बहुत ज्यादा आजकल दिख रहा है कि हम प्रोडक्ट्स देखने जाएं मार्केट में या इंटरनेट को देखें, तो ग्लाइकोलिक एसिड भी एक मेजर इंग्रेडिएंट के रूप में उभर के आ रहा है. तो क्या रोल है इस ग्लाइकोलिक एसिड का स्किन केयर प्रोडक्ट्स में? ग्लाइकोलिक एसिड डीपिगमेंटेशन थेरेपी के रूप में और एंटी एजिंग थेरेपी के रूप में और फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करने के लिए एज एन एंटी एजिंग प्रोडक्ट भी काम करता है. यह रूटीन में 6 to 12% कॉम्बिनेशन कंसंट्रेशन में यूज किया जाता है. थेरेपेटिकली समटाइम्स इन डर्मेटोलॉजी क्लिनिक वी कैन यूज फ्रॉम 30 to 50% concentration also, but as a home care product we can use glycolic acid in 6 to 12% combination, and it is very effective. मतलब डॉक्टर आप हैं, है ना, लेकिन गूगल एक बहुत बड़ी चीज है. तो गूगल पे मैंने पढ़ा कि ये जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है वो कोई हाइड्रोक्विनोन होता है, उससे बहुत सेफर है. बिल्कुल सेफर है. हाइड्रोक्विनोन लंबे टाइम तक यूज करने से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है. ऑक्रोनेसिस नाम का एक पिगमेंटेशन की ज्यादा डिजीज हो सकती है. हाइड्रोक्विनोन फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू कैन यूज, बट ग्लाइकोलिक एसिड यू कैन यूज फॉर एवर. Means from 6% to 12% can be used forever or alternate day at night time before going to bed. Great. आप ही जैसे 6% 10% की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डॉक्टर से पहले. तो ये शुरू से आपने कर लिया था कि मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है, तभी ये 6% भी याद है, 10% भी याद है, रात को ये लगाना है, सुबह ये लगाना है? नहीं, बहुत ऑनेस्टली आंसर करूंगा मैं जब MBBS कर रहा था, तो इंटर्नशिप में हमारे 15 दिन की पोस्टिंग होती है. उस इंटर्नशिप की पोस्टिंग 15 दिन की, उस समय जो मैं बात कर रहा हूँ 2003 की, जिस समय मैंने इंटर्नशिप मेरी चल रही थी, स्किन की पोस्टिंग के लिए बहुत ही कम स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहते थे. आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट हु अटेंडेड कंप्लीट 15 days इंटर्नशिप. मेरे टीचर थे डॉक्टर RD मेहता सर. उन्होंने मुझे कहा था कि आप स्किन में 15 दिन क्यों बैठना है, इतना क्या इंटरेस्ट है स्किन में? तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि मुझे MD स्किन में ही करनी है, चाहे कुछ भी हो, मुझे MD स्किन में. और तभी से मुझे स्किन में MD करने का इंटरेस्ट था. और भगवान की इच्छा देखिए कि PG में भी बाय चॉइस मैंने स्किन में ही सिलेक्शन लिया, और अहमदाबाद में से मैंने MD ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी. ग्रेट. तो मतलब परसेंटेज जो एसिड की है उसका ये राज है कि बचपन से आपका स्किन केयर में इंटरेस्ट था. बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल. मेरा पैशन था स्किन का या कॉस्मेटोलॉजी प्रैक्टिस करने का. ग्रेट. तो ग्लाइकोलिक एसिड गिव रिजल्ट एज इक्विवेलेंट टू हाइड्रोक्विनोन बट सेफर. But it is safe than hydroquinone. Yes, definitely. You can say that if we have to start the hydroquinone for pigmentation therapy, initially for few weeks we can start with hydroquinone 2% or 4%, but later on we can switch to glycolic acid. Glycolic acid 6% is very safe, ultra safe for a longer period of time. सर, जब एसिड्स की बात हो रही है और ये सारी बात होती है, तो एक और मुझे ध्यान आ रहा है, अल्फा आर्बिटिन. Yes, alpha arbutin also a depigmenting agent. It's बहुत कुछ यूनिकनेस है इसके बारे में.
अल्फा आर्बिटिन जो डीपिगमेंटिंग क्रीम है वो भी बहुत सेफ है, और कॉम्बिनेशन सिनर्जी कॉम्बिनेशन के रूप में लिकोरिस एक्सट्रैक्ट, अल्फा आर्बिटिन, कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, मल्टीपल कॉम्बिनेशन के रूप में हम पिगमेंटेशन में थेरेपी के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ओवर द काउंटर प्रिस्क्राइब नहीं की जा सकती, ये कॉम्बिनेशन में डर्मेटोलॉजी से या कॉस्मेटोलॉजी प्रैक्टिस से ही प्रिस्क्राइब करके लेनी चाहिए। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि जो अभी आपने अल्फा आर्बिटिन के बारे में यूनिकनेस बताई है, तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम जाके केमिस्ट से ये चीज नहीं ले सकते। जी, आइडियली नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आपसे प्रिस्क्राइब करा के उसके बाद चाहे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, चाहे केमिस्ट से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन परचेज करिए। ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे दवाइयाँ बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ बिक रही हैं, और वो लेना चाहिए। बट मेरा मानना है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है डीपिगमेंटिंग एजेंट की, और आप अननेसेसरली ऑनलाइन या गूगल सर्च करके या इंटरनेट सर्च करके सीरम ट्रेंडिंग है इसलिए ले रहे हो, तो वो एक सही प्रैक्टिस नहीं है। आपको एक बार कंसल्ट करना चाहिए, और फिर आप अपने जो भी प्रोडक्ट आपको सूट करते हैं उन्हें आप यूज कर सकते हैं फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये तो राम जी ने भी वैद बुलाया था लक्ष्मण जी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो वो तो कुछ भी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे। तो जिस काम के लिए जो परफेक्ट पर्सन है उसी से कांटेक्ट करके, उसी से कंसल्टेशन लेके ही हमें कोई भी स्किन का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अच्छा, कमिंग अगेन बैक टू, थोड़ा सा मैं रिवर्स जाना चाहूंगा। एवरीवन हैज हर्ड अबाउट एक्ने। यस, मुहासे जो होते हैं, एंटी एजिंग, सभी को थोड़ा यंग दिखने की, रिंकल फ्री रहने की चाहत है। ये जो पिगमेंटेशन वर्ड है, इसको एज अ लेमैन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पिगमेंटेशन का मतलब क्या होता है एक्चुअल? बिल्कुल, अब बहुत अच्छा सवाल है ये, और ऑडियंस इससे कनेक्ट भी करेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा सवाल। क्योंकि पिगमेंटेशन मीन्स आपका नेचुरल कलर अगर सांवला है तो आपके पिगमेंटेशन नहीं है। अगर आपका नेचुरल कलर आपका गोरा है या टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 स्किन है, वहां किसी पैच में अगर आपके उससे जो रिलेटिव स्किन से ज्यादा गहरा दाग है, तो दैट इज ए टाइप ऑफ पिगमेंटेशन। वो आपको एक्वायर्ड भी हो सकता है, हेरिडिटी से भी हो सकता है, एनवायरमेंटल इंड्यूस भी हो सकता है, सन इंड्यूस भी हो सकता है। मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से आपके एक पिगमेंटेशन चेहरे पे भी हो सकता है, कई बार बैक पे भी हो सकता है, हाथ के ऊपर भी हो सकता है धूप की वजह से, पैरों पे भी हो सकता है। तो पिगमेंटेशन मानी डिजीज कब कही जाएगी? जब आपका पूरा शरीर एक जैसा हो तो कोई पिगमेंटेशन नहीं है, पर पूरा शरीर ही गोरा है, खाली कुछ जगह पिगमेंटेशन है, तो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जैसे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी उनमें एक रीजन है। धूप का एक्सपोजर अगर जरूरत से ज्यादा हो रहा है उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन बढ़ता है, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। तो मतलब सनस्क्रीन तो मस्ट है। बिल्कुल मस्ट है। आज के डेट में हम जैसे एक्सपोजर अगर बाहर रहता है और सनलाइट में एक्सपोजर भी नहीं रहे, तो स्क्रीन टाइम इतना हो गया है हमारा मोबाइल पे, इंटरनेट पे, और जॉब रिलेटेड वर्क फ्रॉम होम, तो हमें फिल्टर्स लगाने जरूरत होते हैं ब्लू लाइट के लिए, अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए। हम अगर सनस्क्रीन कोट करके रखते हैं तो हमारी स्किन पिगमेंटेशन भी से भी प्रोटेक्टेड रहेगी, और एंटी एजिंग भी वो प्रोडक्ट काम करेगा। सनस्क्रीन एज एन एंटी एजिंग प्रोडक्ट? एज एन एंटी एजिंग प्रोडक्ट भी काम करता है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट ए होती है वो आपकी स्किन में एजिंग बढ़ाती है। तो वो यूवीए फिल्टर जब आप स्किन पे आप अप्लाई करते हो तो एजिंग भी कहीं ना कहीं प्रिवेंट होती है। ओके, तो सनस्क्रीन सुबह एक बार अप्लाई करके निकल जाएं और शाम को आके मुंह धो लें बस, और रात को सो जाएं अपनी सीरम या डेली रूटीन करके, तो चलेगा? नहीं सर, सनस्क्रीन एक बार लगाया हुआ सनस्क्रीन आपको 3 से 3.5 घंटे तक का सन प्रोटेक्शन दे सकता है। वो भी अगर SPF 50 का हो तो 98% रेज आपकी प्रोटेक्ट करेगा। एवरी 3 आवर्स अगर 2 या 3 बार अगर हम पूरे दिन में लगा लेते हैं सनस्क्रीन, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही इफेक्टिव रहेगा, बहुत ही कारगर रहेगा। पिगमेंटेशन से भी बचाव रहेगा और एजिंग से भी आपका बचाव रहेगा। तो अभी आपने वर्ड लिया SPF 50। यस, लेकिन ज्यादातर मार्केट में SPF 30 यूज हो रहा है, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? SPF 50 में मतलब इट इज टाइप ऑफ सन प्रोटेक्शन फैक्टर, मींस जिसमें 98% अल्ट्रावायलेट रेज फिल्टर होके बच जाए, स्किन के कांटेक्ट में नहीं आए। SPF 30 में लेस देन 90% रेज फिल्टर होंगी, तो जो एक्स्ट्रा अगर जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है और बूट स्टार रेटिंग है, वो हमारी स्किन को सनलाइट से और ज्यादा बचाएगी, और ब्लू लाइट से, स्क्रीन लाइट से भी बचाएगी। हमारे को इन हाउस जैसे हम यहाँ लाइट भी रहती है, जो LED लाइट्स भी है, कैमरा लाइट्स भी है, उनसे भी बचाने के लिए सनस्क्रीन काफी इफेक्टिव काम करता है। तो मतलब SPF 50 ज्यादा बचाती है बशर्ते SPF 30 के लिए, yes. चाहे वो थोड़ा सा ही हो। हाँ। तो मैं तो सर डॉक्टर मित्तल, मैं तो
यूज ही SPF 50 करूंगा। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि लॉन्ग टर्म डैमेज से तो मुझे कम से कम बचाएगी SPF 50। डेफिनेटली बचाएगी, बट एक बार सनस्क्रीन का कोट नहीं करना। सनस्क्रीन लगाते टाइम बहुत बार हम देखते हैं कि सनस्क्रीन बहुत कम अमाउंट में लगाया जाता है। इट इज यूज्ड एज 1 फिंगर टिप यूनिट, बट आइडियली इट शुड बी इवनली स्प्रेड ओवर द स्किन, और थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में अच्छे से पूरे चीक्स पे और कवर हो। अगर आपके हाथ भी अनकवर्ड है तो वहां भी हमें सनस्क्रीन थोड़ा अच्छे से इवनली स्प्रेड करके लगाना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव होगा। ओके, एक और एसिड मुझे ध्यान आ रहा है वो कि बहुत मल्टीटास्कर है, नियासिनामाइड। जी, नियासिनामाइड बहुत काम में ले रहे हैं यंगस्टर्स। जेनजी जो पॉपुलेशन है, जेनजी यंगस्टर्स हैं, वो उनमें बहुत क्रेज है नियासिनामाइड सीरम काम लेने का। नियासिनामाइड भी एक तरह का एंटी इन्फ्लेमेटरी सीरम है, ओपन पोर्स के लिए अच्छा पिगमेंट सीरम काम करता है और बहुत सेफ भी है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इरिटेटिंग पोटेंशियल नहीं है, और किसी भी प्रकार की स्किन में ये सीरम फॉर्मुलेशन में काम में ले सकते हैं। ये विटामिन B3 का डेरिवेटिव है, और कुछ कॉम्बिनेशन में ये एक्ने की प्रिपरेशन में भी कॉम्बिनेशन में होता है, और डीपिगमेंटेशन थेरेपी में भी यूज किया जाता है। सिंगली भी ये नियासिनामाइड सीरम स्किन फॉर्मुलेशन में एज ए प्रिवेंटिव मेजर यूज कर सकते हैं। तो मतलब ये ऐसे मल्टीटास्कर है कि ये जो रेडनेस होती है, आपने इन्फ्लेमेशन की बात करी, तो जो स्किन पे रेडनेस होती है उसको काम डाउन करता है। बिल्कुल काम डाउन करता है, डेफिनेटली एंटी इन्फ्लेमेटरी सीरम है। तो इन्फ्लेमेशन किसी भी वजह से हो, चाहे सनलाइट से हो सकता है, ड्राइनेस से हो सकता है, कुछ आपने मेकअप लगाया उसकी वजह से हो सकता है, कुछ कॉस्मेटिक लगाया उसकी वजह से हो सकता है, उसमें भी ये प्रोटेक्ट करेगा। और ओपन पोर्स, जैसे आपकी स्किन में जो बहुत छोटे छोटे पोर्स दिखते हैं, उसको भी रिपेयर करता है। पिगमेंटेशन को भी कुछ हद तक कॉम्बिनेशन और सिनर्जी कॉम्बिनेशन में आपको हेल्प करेगा। और एंटी एजिंग प्रिपरेशन, एंटी एजिंग फॉर्मुलेशन भी है, और ये जो है अनइवन स्किन टोन को भी इवन करेगा, और फ्लॉलेस स्किन मेंटेन करने में भी कॉम्बिनेशन में हेल्प करेगा। तो 2 वर्ड आपने मुझे बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किए। तो पिगमेंटेशन, जिसके बारे में मैं और मेरे ख्याल से ऑडियंस भी अभी सारे थोड़ा सा क्लियर होंगे। एक वर्ड लिया आपने पिगमेंटेशन, जो कि बहुत क्लैरिटी से आपने हमें बताया। अब एक और नई चीज आपने ली, अनइवन स्किन टोन। यस। तो पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन टोन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पिगमेंटेशन में मान ली अगर पूरा फेस पे आपका नेचुरल कलर है, कुछ कुछ पैचेस पे आपका थोड़ा डार्कनिंग है, दैट इज ए टाइप ऑफ पिगमेंटेशन। अनइवन स्किन टोन में मानी आपका स्किन का कलर एक जैसा नहीं है, इवननेस भी एक जैसी नहीं है, मतलब आपका कहीं रफ है, कहीं स्मूथ स्किन है, तो वो अनइवन स्किन टोन हो गई। उसमें पिगमेंटेशन का रोल भी रहता है, लेकिन स्किन के टेक्सचर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इवन स्किन टोन में और अनइवन स्किन टोन। अच्छा, टेक्सचर इज वन पार्ट where everyone should take care of beside pigmentation and uneven skin tone. अब एक वर्ड आपने डॉक्टर साहब लिया, सिनर्जी। यस। सिनर्जी का जहां तक मैं समझा हूं, आजकल बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में कई इंग्रेडिएंट्स, कई एसिड मिले हुए होते हैं। तो सिनर्जी का क्या रोल रहता है, और क्या इसके पीछे कुछ रिसर्च भी है? फॉर्मुलेशन जैसे आपने बताया, हमने चर्चा करी, कोजिक एसिड, अल्फा आर्बिटिन, नियासिनामाइड, ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉल सीरम, हाइलोनिक एसिड, बहुत सारे तरह के कॉम्बिनेशन है। पर परफेक्ट फॉर्मुलेशन बनाने के लिए हर मॉलिक्यूल का एक फिक्स परसेंटेज को सिनर्जाइज करके हम एफिकेसी उस मॉलिक्यूल की बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स एंड स्किन केयर एसिड्स होते हैं, वो जब एक साथ मिला दिए जाते हैं और उनका समुद्र में मंथन किया जाता है, तो कुछ अमृत ही निकल के आता है। हाँ, मतलब उनको जब मिला दिया जाता है तो जो फॉर्मुलेशन बनता है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल से ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा कारगर होगा, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहेगा उसका। दैट मींस दैट कैन एम्पलीफाई द बेनिफिट्स। हाँ, मल्टीप्लाई द रिजल्ट, दैट कैन एम्पलीफाई द रिजल्ट्स एंड दैट कैन सस्टेन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और वो मल्टीपल स्किन कंसर्न को भी, मल्टीपल स्किन इश्यूज को भी एड्रेस करेगा। एब्सोल्युटली सर। और लेट्स टॉक अबाउट वन थिंग मोर डॉक्टर साहब, डज क्वालिटी and right proportion matters? Definitely sir, if there is no right proportion, the formulation will not work, it will be oxidized, it will not remain stable। तो अगर स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है और ऑक्सीडेशन से बचाना है तो हमें फॉर्मुलेशन का राइट कंसंट्रेशन और राइट टेक्सचर में और राइट फॉर्मुलेशन में यूज करेंगे तो ही इफेक्टिव होगा, तो ही वो स्किन पे पेनिट्रेट होता है। स्किन मॉलिक्यूल जो पेनिट्रेशन के लिए मॉलिक्यूल की साइज अगर ज्यादा हुई तो पेनिट्रेशन नहीं होगा, तो इफेक्ट नहीं आएगा। तो इफेक्ट तभी आता है जब वो एपिडर्मिस और डर्मिस से पेनिट्रेट होके
टारगेट साइट तक पहुंचता है। ओके, तो मतलब right proportions of acid and other ingredients have a great role in any skincare product. बिल्कुल, डेफिनेटली। So that's why friends, we at Clay of Heaven carefully formulated our products and have balanced ingredients of all acids and other natural ingredients too. तो सब अगर कोई नया व्यक्ति अपना स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करना चाहता है, नया स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करना चाहता है, तो उनको आप क्या राय देंगे? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। हमारे क्लिनिक पे, मित्तल स्किन क्लिनिक पे बहुत सारे क्लाइंट्स इसलिए आते हैं, उन्हें कोई डिजीज नहीं होती है और ना उन्हें किसी प्रकार की स्किन इलनेस होती है। उनका खाली एक कंसर्न होता है कि हमें स्किन केयर रूटीन रेजिम बताइए, भले ही चाहे वो डे केयर रेजिम हो या नाइट केयर रेजिम हो। तो मैं बताना चाहूंगा कि स्किन केयर का रूटीन रेजिम इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हमें एक मॉइस्चराइजर इंक्लूड करना होगा, एक सनस्क्रीन हमें उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आपका ओपन पोर्स है तो हमें नियासिनामाइड सीरम ऐड करना होगा। अगर आपके ऑयली स्किन है तो हम सैलिसिलिक एसिड का सीरम फॉर्मुलेशन 2% 3% में यूज कर सकते हैं। और अगर आपके रिंकल्स है, फाइन लाइंस है, तो हम रेटिनोल सीरम यूज कर सकते हैं। तो आइडियल जो सीक्वेंस है वो होना चाहिए कि सबसे पहले वी शुड क्लींस आवर फेस और स्किन, और उसके बाद में टोनर अगर आप करते हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद में अगर आपको कोई थेरेपेटिक मॉलिक्यूल है, जैसे सपोज इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एक्ने, तो एक्ने का जो जेल आपको अपने स्किन स्पेशलिस्ट ने दिया है, दैट शुड बी अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ एक्ने जेल। वी कैन अप्लाई नॉन कोमेडोजेनिक सनस्क्रीन in gel formulation, which is non-oily and non-greasy. This should be the ideal skincare regime in daytime if you are suffering from acne. In night time, you can use cleanser followed by night repair serum, retinol serum, and at last you can use coat it with vitamin C serum or hyaluronic acid serum. Okay. आपने एक वर्ड लिया है, थोड़ा बड़ा सा है और थोड़ा डिफिकल्ट सा भी, नॉन कोमेडोजेनिक। Yes. Can you elaborate on this non-comedogenic? कुछ फॉर्मुलेशंस में ग्रीजी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो जो सीबेसियस ग्लैंड होती है उसके पोर्स को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से कोमेडोन डेवलप होते हैं। तो ग्रीजी, नॉन ग्रीजी फॉर्मुलेशन होने से ही हमारी स्किन एक्नेजेनिक नहीं रहेगी, नॉन एक्नेजेनिक रहेगी। इसलिए मैंने यूज किया नॉन कोमेडोजेनिक, क्योंकि हम स्किन को रिपेयर करने की बात कर रहे हैं। और अगर कोई भी फॉर्मुलेशन ऐसा लगाएंगे जिससे अगर दैट इटसेल्फ विल क्रिएट एक्ने, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए नॉन कोमेडोजेनिक शुड बी देयर। ओके। और जो इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड है, जो कि स्टेबल फॉर्म है विटामिन सी का, ये सभी को यूज करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी को यूज नहीं करना चाहिए, बट ये ऐसा कॉस्मेटिक, एज ए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, आप स्किन को मेंटेन करने के लिए, स्किन की एजिंग इफेक्ट ज्यादा नहीं आए, स्किन में अच्छा चमक रहे, उसलिए नाइट रिपेयर सीरम के रूप में या डे स्किन सीरम के रूप में यूज कर सकते हैं। तो दैट मींस वी कैन स्टार्ट यूजिंग ethyl ascorbic acid serum from the age of 25? 25-30 we can start it. There is no harm in using it. Okay. And hydration of skin is very important these days due to pollution. Is very, because nowadays we are sitting, we are working indoor, so we are taking less intake of water, है ना? Yes. So hyaluronic acid will maintain your hydration part of the skin. तो जो सेलिब्रिटी स्किन आती है और जो आजकल ग्लास स्किन की बातें करते हैं, तो यह एक दिन में हो जाती है या कई महीनों हफ्तों यूज करना पड़ता है और डेली स्किन केयर रूटीन को बहुत फॉलो करना पड़ता है? देखो, वैसे तो ये गॉड गिफ्टेड ही होती है। आपकी हेरिडिटी अगर स्किन की अच्छी है तो आपकी स्किन, अगर पेरेंट्स की अच्छी है तो आपकी स्किन अच्छी रहती है, जिसे जीनोटाइपिक बोलते हैं। बट जो आप बात कर रहे हो कि हम बाहर से कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो यस डेफिनेटली, अगर हम सीरम यूज करते हैं, एंटी एजिंग सीरम यूज कर सकते हैं, और अगर थोड़ा विटामिन सी और नियासिनामाइड सीरम यूज कर सकते हैं, और सनस्क्रीन अगर अच्छे से लगा रहे हैं और प्रॉपर फेस वॉश कर रहे हैं, तो हमारी स्किन अच्छी मेंटेन रहेगी। और आजकल जो ग्लास स्किन है उसमें बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कोरियन ग्लास फेशियल, कोरियन ग्लास प्रोडक्ट। वो आपके जो कोरिया के लोगों की बहुत पतली ग्लास लाइक स्किन होती है, उस तरह की एक बार टेम्पररी आपकी वो फेशियल कराने के बाद में एक बार हो जाती है। बट अगर आप सिन सीरम रूटीन में यूज कर रहे हो, आप अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफस्टाइल का ध्यान रख रहे हो, फूड हैबिट्स का अगर ध्यान रख रहे हो, आपका स्लीप पैटर्न प्रॉपर है, और अगर आपका जो साइकिल, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो अगर बिगड़ा हुआ नहीं है, तो आपकी स्किन मेंटेन रह सकती है। स्लीप पैटर्न, ये एक बहुत जोरदार चीज है। आजकल ओटीटीज ने नींद ही उड़ा दी है।
तो ये स्लीप पैटर्न मतलब मिनिमम हमें कितने घंटे सोना चाहिए? मिनिमम 6 से 8 घंटे के बीच में तो सोना ही चाहिए। फिर नेटफ्लिक्स कब देखेंगे? नेटफ्लिक्स तो आप डे टाइम में देखिए, अपना एंटरटेनमेंट का टाइम फिक्स करिए, 1-2 घंटे का टाइम फिक्स करिए। पर जनरली होता ये है कि रात को जब आप काम से लौटते हैं या अपने ऑफिस से लौटते हैं, उस समय आप जब नेटफ्लिक्स शुरू करते हैं तो वो लंबे टाइम तक आप देखते रहते हैं, क्योंकि आपको एडिक्शन सा लग हो जाता है उसका, तो आपकी स्लीप डेफिनेटली इफेक्ट होगी। तो उसे अवॉइड, कॉन्शियसली यू शुड अवॉइड इट। यस, लेकिन थोड़ा बहुत अवॉइड आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पॉडकास्ट देखने के लिए जब आप फ्री हो रात को, तो डॉक्टर संजय मित्तल और क्ले ऑफ हेवन का पॉडकास्ट तो आपको देखना ही है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बार बार एक चीज पे बहुत फोकस किया है, चाहे कोई सी भी सीरम यूज करें, कोई भी क्रीम यूज करें, सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज ए मस्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल। Not for every individual, but our lifestyle has changed like anything. We are exposed to sunlight, sometimes we are exposed to LED lights, camera lights, mobile lights, screen light. That's why I will suggest to apply the sunscreen in sufficient quantity. डॉक्टर मित्तल, कुछ फन भी ऐड करते हैं आज हमारी इस पॉडकास्ट में। Great. तो एक रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड करते हैं। अच्छा, चलो बताइए। मैं आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन अ मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन? सनस्क्रीन। Which ingredient is a powerhouse for hydration? Hyaluronic acid, as we have discussed earlier. If you are dealing with dark spots, what should you look for in a product? There should be kojic acid, alpha-arbutin, glycolic acid in a combination formulation, which will work as a best anti-pigmentation, depigmentation agent. What does non-comedogenic mean? Which is not causing comedones or acne-prone skin. What's the golden rule after using exfoliating acids? After using exfoliating agents, we should apply moisturizer and sunscreen also. Which acid is best for oily, acne-prone skin? For oily and acne-prone skin, we should use salicylic acid. How often you exfoliate your skin? Routinely, we can exfoliate the skin from 2 to 3 times in a week, or sometimes 5 times in a week also. What should you avoid if you have sensitive skin? We should avoid the fragrance-based product, alcohol-based product, paraben-based product, which will irritate your skin. That's why it should be avoided. Great, sir. Thank you. डॉक्टर मित्तल, अगर और हमारे ऑडियंस को आपको रीच आउट करना हो, कोई क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो हाउ कैन दे रीच यू? अगर कोई भी क्वेरी हो ऑडियंस की, तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है मित्तल स्किन क्लिनिक के नाम से, और फेसबुक पे भी मित्तल स्किन क्लिनिक के नाम से ही है। हमारा क्लिनिक रन कर रहे हैं हम 17-18 सालों से विद्याधर नगर जयपुर में, मित्तल स्किन हेयर लेजर एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक से। और एक मैं सजेशन देना चाहूंगा, एडवाइस है, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और स्किन beauty gives the first impression of the body, so you don't get the second chance to give the first impression. So always take care of the skin, listen to your skin, and the skin will say thank you to you. Thank you so much. Thank you again, Dr. Mittal, for being here with us and giving your valuable time and insights. It was a pleasure meeting with you, and I have learned so many things from you also, Mr. Amit. Thank you. It's a mutual learning. I would like to present the Clay of Heaven range of products to you. Thank you so much. और मैं चाहूंगा कि आप भी इन प्रोडक्ट्स को यूज करें और हमें फीडबैक शेयर करें आप भी। I will try and give that feedback to you. Thank you.